So hey guys, welcome back to another video of Just Medical Stuff, and in today's video we'll be talking about the rest of the PYQ. So I have actually made a part 1 of PYQ. This is the part 2 video. Those who have not watched the part 1 video yet, please go and watch that video because that video contains like very important topic which you actually cannot miss for your FMG exam. And first of all, I like you guys to remember that yes, we have only 3 days left for exam, and 3 days actually बहुत time होता है. You can actually do a lot in those 3 days. आप बहुत सारा syllabus complete कर सकते हो. So please don't give up, okay? And just keep on practicing. And actually, I have even added, 10 NEET PG questions which were actually repeated in FMG exam as well. I won't like explain you these 10 questions. I'll just show those questions to you, and you have to answer those questions in the comment box. And if you have like any doubt in those questions, if you feel like you are not able to answer, please feel free to text me. I'll even post my Instagram channel link as well, so that you guys will be able to chat with me. And if you have any queries, please do let me know. If you need any PDFs of my previous videos, please do let me know over there, because I have those surgery and patho images wala uh, video which I have made. It actually has like all the important images which you should know for patho and for surgery. बहुत सारे important images हैं उसके अंदर, so that will be beneficial for you guys. If you need the PDF, please do let me know. You can text me on my Instagram handle as well, and if you want on the Telegram channel as well, I'll share the link. So let us start this video without any further delay. Okay guys, so let us start with the first question. Now अगर आप यहाँ पे देखते हो तो the question is Cobness phenomenon is seen in all of the following except. The options are vitiligo, psoriasis, lichen planus and herpes. So the answer of this question will be herpes. Herpes में Cobness phenomenon नहीं देखा जाता. So first of all, what is Cobness phenomenon? Cobness phenomenon में क्या होता है ना, एक primary lesion होगा and due to trauma or secondary lesions आ जाएंगे. Some small secondary lesions will come due to trauma from the primary lesions. Now, if you see at the image now, this image is showing what a Cobness phenomenon actually is. Okay, एक primary lesions हुआ, बंदे ने scratch किया या कुछ किया. Scratching is also a kind of trauma, right? तो scratch किया, उसके कारण you can see many secondary lesions forming over here. So this is nothing but your Cobness phenomenon, which is seen in vitiligo, psoriasis, and lichen planus, but not seen in herpes. That is why ये इसका answer है. Now I want you all guys to actually go through all these 4 diseases as well, ताकि आपको idea मिल जाए कि इन सब diseases में क्या होता है. Herpes में नहीं होता तो इन सब diseases में क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा. Now the next question. A patient presents with swelling in MCP joints and his serum uric acid levels were found to be elevated. His physician prescribed a drug which is said to be the first line drug in the management of this condition. अब वो drug का mechanism क्या है इस question में पूछा गया है. So the options are pyrimidine antimetabolites, inhibitor of neutrophil recruitment, uricosuric drugs and xanthine oxidase inhibitors. अगर आप इस क्वेश्चन की हिस्ट्री देखते हो ना, द पर्सन हैज एक्चुअली गाउट. द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गाउट, एंड गाउट के लिए जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं? सो दे आर नथिंग बट xanthine oxidase inhibitors. नाउ इफ यू लुक हियर, हमारे पास दो टाइप के xanthine oxidase inhibitors होते हैं. एक है हमारा allopurinol जो सबको मोस्टली पता होगा, और दूसरा है febuxostat. So these two are the xanthine oxidase inhibitors. Go a bit into details. So the drugs which are used for the management treatment of gout are the one which decrease the synthesis of uric acid, which are nothing but xanthine oxidase inhibitors. Drugs which increase the elimination, which are of two types. We have losartan and we have probenecid. And drugs which actually increase your metabolism, which is your pegloticase. So we have three drugs for management: xanthine oxidase inhibitors, which are your allopurinol and febuxostat, which increase your elimination, losartan and probenecid, and which increase your metabolism, nothing but your pegloticase. So now if you come back to this question, the answer here is your xanthine oxidase inhibitors. But please guys do let me know ऐसा कौन सा ड्रग होता है जो हम acute attack में देते हैं gout की. Please do let me know in the comment box the drug of choice for an acute attack of gout. Now let us go to the next question. A tourist with a travel history to India presents with complaints of abdominal pain and multiple episodes of watery diarrhea. He reports having food at a local restaurant the previous night.
Which of the following antidiarrheal agents is used in this condition? Now, if you look at this question now, इसको diarrhea हुआ है. But what sort of diarrhea is the person having? The person is having a non-infective diarrhea. Okay. The options क्या दिए हमको? We have octreotide, we have loperamide, we have rifaximin, and we have bismuth subsalicylate. Now, अगेन अगर आप इसके बारे में देखते हो ना, दिस इज नथिंग बट योर नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, एंड द ड्रग विच वी बेसिकली यूज फॉर नॉन इन्फेक्टिव डायरिया इज व्हाट इज योर नथिंग बट लोपेरामाइड. लोपेरामाइड ही हम देते हैं अगर नॉन इन्फेक्टिव डायरिया हुआ. एंड प्लीज गाइस डू लेट मी नो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेक्रेटरी डायरिया and the drug of choice for traveler's diarrhea also in the comment box. I'll be asking such questions to you throughout this video because I want you guys to know actually get a hold on the topic. हमको पता है कि नॉन इन्फेक्टिव डायरिया के लिए वी गिव लोपेरामाइड, ओके. बट फॉर सेक्रेटरी डायरिया एंड ट्रैवलर्स डायरिया भी साथ में आकर लोगे तो इट विल बी बेटर ना. So please do let me know the drug of choice for secretory diarrhea and for traveler's diarrhea as well in the comment box. So the next question is about lithium. Lithium usage in pregnancy can lead to which of the following teratogenic effects? The options are cardiac defects, facial defects, CNS defects, and urogenital defects. Now, if you look in the options over here, I have actually written over here. लिथियम जो होता है ना, उसके साइड इफेक्ट्स को आप लिथियम के ही नाम से याद कर सकते हो. Li stands for leukocytosis. T stands for tremors. Now these tremors as a side effect of lithium are initially fine, but अगर हम उसको treat नहीं करेंगे ना, so और डोज को इंक्रीज करेंगे, so we have coarse tremors. तो अगर लिथियम की डोज बढ़ जाएगी, so we'll have coarse tremors as the side effect instead of fine tremors. Fine tremors initially होते हैं, लेकिन डोज बढ़ेंगे तो coarse जाएंगे वो tremors. X stands for hormonal disturbance. क्या कम होता है? We have decreased T3. We have increased PTH. So we have increased calcium. We have we can have calciuria, and there will be decreased ADH. So X stands for hormonal disturbance, decreased T3, increased PTH, and decreased ADH. I stands for increased weight. U stands for ECG changes. ECG changes में क्या दिख रहा है? We have U wave. U wave appear होने लगती है and T wave की inversion देखने को मिलती है. And M stands for mothers. Mothers में क्या होता है? Mothers की pregnancy के time पे we have Epstein's anomaly. अब Epstein's anomaly क्या होती है? Epstein anomaly is a congenital heart defect. Okay. Okay, so what were the side effects of lithium? Li stands for leukocytosis, T stands for tremors, which are initially fine, लेकिन अगर dose बढ़ेगी, in the case of toxicity, we can have cause tremors. H stands for hormonal disturbance. Here what we have decreased T3, increased PTH, which leads to increased calcium in our body, and decreased ADH. I stands for increased weight, U stands for ECG changes because U wave appears, and we have T wave inversion as well. M stands for mothers in pregnancy. We can have Epstein's anomaly, which is nothing but your cardiac defect. Okay, so M में cardiac defect हो रहा है. Now, if you look at this question, what were they asking? They were asking about pregnancy के time पे if you use lithium, what can you find? So in the case of pregnancy, if you use lithium, what can happen? The options are cardiac defects, facial defects, CNS defects, and urogenital defects. So the option here, the correct answer is cardiac defect because I told you guys कि यहाँ पे Epstein's anomaly देखी जाती है. So in the case of lithium, अगर pregnancy में continue की जाएगी तो we can have Epstein's anomaly. Now one more thing I like you guys to know, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, वहां मैंने आपको बोला कि this is a case of non-infective diarrhea and we have to use loperamide here. Now suppose loperamide नहीं है, हम loperamide नहीं दे पा रहे इंसान को, ठीक है, तो हम इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? लोपेरामाइड नहीं दे पा रहे तो लोपेरामाइड की जगह पे which other drug can we give to the patient? Please let me know in the comment box. So I want you guys to answer 4 questions till now. Acute attack of gout के drug of choice क्या है? लोपेरामाइड नहीं दे पा रहे तो which is another drug which can be used in the case of non-infective diarrhea? वो क्वेश्चन का आंसर करो. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेक्रेटरी डायरिया वो क्या होता है उसका आंसर करो. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रैवलर्स डायरिया उसका आंसर करो. So 4 questions you need to answer right now in the comment box. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now what is the pattern of inheritance in neural tube defects? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, मल्टीफैक्टोरियल है. कौन सा डिफेक्ट होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का? दिमाग लगाओ. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हमेशा मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस इन द केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. And you know what? You all guys should know
आप कहीं भी जाओ, गूगल पे जाओ या फिर यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली ऑल्सो, बहुत सुंदर टेबल है मेरे पास विच यू नो हैव ऑल द डिजीजेस, उनके निमोनिक्स बने हुए हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन से डिजीज होते हैं, एक्स लिंक्ड में कौन से, ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन से। मेरे पास बहुत सुंदर सा एक टेबल बना हुआ है। इफ यू गाइस वांट आई कैन सेंड इट टू यू, अदरवाइज बहुत सारे टेबल्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे भी आपको या फिर गूगल में कहीं मिल जाएंगे, उनको एक मिनट याद कर लो। मल्टीफैक्टोरियल याद रखो, मल्टीफैक्टोरियल जो होते हैं हमारे न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स में होते हैं मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई कैन शो यू। See, many factors are involved. Environment, genetics, which can lead to altered folate metabolism. Now, folate is very important. क्यों, जब जब प्रेगनेंसी होती है ना, why do we give folic acid to the mother? Because folate नहीं दोगे, folic acid नहीं दोगे तो डिफेक्ट्स होने के चांस बढ़ते हैं. So environment, genetic, which can alter the folate metabolism, which can further lead to neurotube defects in the patient. Okay, in the baby we can have neurotube defects. Okay, guys, so let us start with the next question. A laborer's young child is brought to the OPD with a swollen belly and a dull face. He has been fed rice milk in his diet mostly. So proteins वगैरह नहीं मिल रहे हैं बच्चे को अच्छे से. On investigation, the child is found to have low serum protein and a low albumin. What is the probable diagnosis? Options are kwashiorkor, मरासमस, इंडियन चाइल्डहुड सिरहोसिस एंड कावासाकी डिजीज। ओके, तो जहां आपको दिखे ना कि बच्चे की बेली बड़ी है, पॉट बेली दिखने को मिल रही है, गो फॉर क्वेशियोकर, क्योंकि मारासमस वाला बच्चा जो होता है ना वो बहुत पतला होता है, हड्डी हड्डी दिखती है बच्चे की, बहुत पतला बच्चा होता है। जहां पॉट बेली दिखेगी ना, क्वेशियोकर उसका आंसर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अगर हम लोग इस पे जाए ना, सो यू कैन सी पॉट बेली दिख रही है, ये बच्चे को क्वेशियोकर है, इसकी पॉट बेली नोटिस कीजिए, प्रोट्यूबरेंट बेली, पॉट बेली कहते हैं उसको, ठीक है। और ये मैरेस्मस वाला बच्चा है, देखें कितना लीन बच्चा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ है नहीं बॉडी में। सो और एक डिफरेंस, ठीक है, मैरेस्मस के बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास प्रोटीन्स और कैलोरीज की डेफिशिएंट होती है, लेकिन जो ये बच्चा होता है ना क्वेशियोकर वाला, वो बेसिकली प्रोटीन्स में डेफिसिट होता है। ठीक है, क्वेशियोकर वाला बच्चा बेसिकली प्रोटीन्स में डेफिसिट होता है, लेकिन मैरास्मस वाला बच्चा प्रोटीन और कैलोरीज दोनों में डेफिसिट होता है। और ये बच्चे को आप देखोगे ना पिक्चर में, तो यू विल बी एबल टू नो प्रोमिनेंट बोन्स दिखेंगी, सबक्यूटेनियस फैट बहुत कम होगा, बहुत पतली स्किन होगी। लेकिन क्वेशियोकर वाला बच्चा जो होगा उसकी बेली बहुत बड़ी होगी, प्रोट्यूबरेंट बेली जहां दिखे गो फॉर क्वेशियोकर। ओके, Okay, so next question, which hyperthyroid drug is safer to use in the first trimester of pregnancy? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आंसर पता ही होगा। ऑप्शंस है प्रोपाइलथायोलासिल, मेथीमजोल, कार्बिमजोल, रेडियोएक्टिव आयोडीन। ऑप्शन सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन का आंसर जो है नथिंग बट योर प्रोपाइलथायोलासिल। अब इसके बाद में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। प्रोपाइलथायोलासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये सिंथेसिस कम करता है किसकी? अपने T3 T4 की, क्योंकि ये इनहिबिट करता है पेरोक्सीडेज को। मोरोवर ये T4 की कन्वर्शन रोकता है T3 में, T4 को T3 में कन्वर्ट होने नहीं देता। इन ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिटर भी होता है। सो इनहिबिट कर रहा है पेरोक्सीडेज को, पेरिफेरल कन्वर्शन को भी इनहिबिट कर रहा है। एक और इसकी बेनिफिट क्या है? इसका ऑनसेट फास्ट होता है, शॉर्ट एक्शन होता है, और इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं? इन सेकंड ट्राइमेस्टर वी कैन यूज मेथीमजोल, कार्बिमजोल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइलथायोलासिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन रेगुलरली ड्राइव्स सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन हिज पार्टनर. He would often produce cuts and cigarette burns on his partner's arms. The best described as voyeurism, fetishism, sadism and masochism. जब एक पार्टनर को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल गया बाय हर्टिंग हिज पार्टनर, दिस इज नथिंग बट योर सैडिज्म। ओके, इसका आंसर सैडिज्म है। सॉरी, इसका जो आंसर है ना, इट इज सैडिज्म। मेरे पास एक टेबल है विच आई कैन शो यू गाइस एंड विच विल हेल्प यू टू get a hold on these topics. This the answer is sadism. Now let me explain it to you guys. sadism क्या होता है ना? When the person gets gratification by giving pain to the partner. Okay. Now when the person gets gratification by receiving pain is masochism. Okay. So masochism क्या होता है? पेन टू सेल्फ, पेन को रिसीव करके उसको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, मैसोचिज्म। पेन दे के मजा आ रहा है, सैडिज्म। What is exhibitionism? It is the displaying of private parts in public. Voyeurism,
उसको हम पीपिंग टॉम भी बोलते हैं, स्कोटोफिलिया भी बोलते हैं और स्कोपोफिलिया भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आप देख सकते हो, आई नो आईपीसीज आर बीइंग चेंज नाउ बट स्टिल याद कर लो, कुछ नहीं होता, 2-3 आईपीसीज हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जीबिशनिज्म अगर पर्सन डिस्प्ले करता है ना, उसके लिए कौन सा आईपीसी रिस्पॉन्सिबल होता है? वी हैव 294 आईपीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो एग्जीबिशनिज्म डिस्प्लेइंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स इन पब्लिक, इसके लिए 294 आईपीसी इन्वॉल्व होता है। वॉयरिज्म के लिए 354 आईपीसी इन्वॉल्व होता है। फेटिशिज्म क्या होता है? गेटिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल डिजायर, फेटिशिज्म होता है, ठीक है। फ्रॉटरिज्म क्या होता है? रबिंग प्राइवेट पार्ट्स इन पब्लिक, 290 आईपीसी उसके लिए इन्वॉल्व होता है। क्लिस्मीफिलिया क्या होता है? बाय एनेमा के कारण, ठीक है। यूरेनिज्म क्या होता है? बाय लिकिंग एंड बाय फिंगरिंग। ट्रांसवर्टिज्म क्या होता है? बाय क्रॉस ड्रेसिंग। कॉप्रोलेलिया क्या होता है? बाय ऑब्सीन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज। स्कैटोलॉजिका क्या होता है? बाय ऑब्सीन कॉल्स। नेरेटोफिलिया क्या होता है? बाय ऑब्सीन स्टोरीज टू द पार्टनर। इकोटेरिज्म क्या होता है? ऑब्सीन साउंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। डिपॉल्डिज्म क्या होता है? टीचर बीटिंग स्टूडेंट्स। ओके, सो ये टेबल है विच इज लाइक हैज ऑल द थिंग्स विच यू नीड। ओके, ये टेबल को आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे टीचर ने मुझे दिया था एंड इट हैज ऑल दीज थिंग्स विच यू नीड टू नो। इसके बाहर आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन कम। एंड आईपीसी को याद रखो, एग्जीबिशनिज्म 294 आईपीसी, वॉयरिज्म पीपिंग टॉम 354 आईपीसी, फ्रॉटरिज्म 290 आईपीसी। सो इसके साथ हमने इसके साथ वाले टॉपिक्स भी कवर कर लिए। याद रखो, अगर पेन वो लेके उस खुशी मिल रही है दैट इज मैसोचिज्म, लेकिन दे के खुशी मिल रही है दैट इज सैडिज्म। ओके, लेके खुशी मिल रही है मैसोचिज्म, दे के अच्छा लग रहा है सैडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 24-year-old woman presents with pruritic hypopigmented macules and confluent patches over the chest. Skin scraping and curettage preparation shows an abundance of yeast-like cells and short branch filaments like spaghetti and meatball. The moment आप देखो ना spaghetti and meatball, you should know कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है Malassezia furfur। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। स्पेगेटी मीटबॉल कहाँ दिखती है? कॉपर पेनी कॉइन्स कहाँ दिखते हैं? ये सब याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। तो स्पेगेटी एंड मीटबॉल देख के ही मुझे पता लगा कि इसका आंसर होगा मेलेसीजिया फर्फर। ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस, ओके, करेक्ट आंसर लिखा है मेलेसीजिया फर्फर। यहाँ पे आप देख लो ऑप्शंस, मेलेसीजिया, ट्राइकोफाइटोन, क्लोमाइडोस्पोर्स एंड कैंडिडा। और आप मुझे बताइए कि कॉपर पेनी कॉइन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कमेंट में बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23-year-old woman presents to the surgery outpatient department with a left-sided breast lump which she noticed on a self-breast examination 3 weeks ago. She has no other complaints. On palpation, the lump seems to be mobile and firm. Mammogram revealed a benign lesion. जहां आपको दिखे ना कि लीजन बिनाइन है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में, ब्रेस्ट कैंसर के ब्रेस्ट की कोई इमेजिंग भी हुई है, कुछ भी दे रखा है क्लिनिकल हिस्ट्री, और मैमोग्राम में बिनाइन लीजन दिखा है, तो बिनाइन लीजन में आप कभी बायोप्सी या कुछ सर्जिकल कुछ वो नहीं देते। यू गो फॉर रियश्योरेंस एंड फॉलो अप। ओके, benign है, कोई complaints नहीं है, so you can go for reassurance and follow up. You don't have to go for any medical treatment, any surgical treatment, कोई biopsy की जरूरत नहीं पड़ेगी। If it is a malignant lesions के हमें chances दिख रहे हैं, तो you can go for biopsy, you can go for surgical treatment, and or you can start tamoxifen, okay? But here it is a benign lesion, so you don't have to do anything. Just go for reassurance and follow up. So the correct answer over here is benign lesion है, so reassurance and follow up. आई एम टेलिंग यू गाइस कि देखो ये क्वेश्चन कितना इजी था, ओके, लेकिन अगर आप डर जाओ एग्जाम में, आपको लगे कि नहीं यू हैव टू गो फॉर बायोप्सी और ये सब, तो नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको बोले हैं ना, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। स्पेगेटी मीटबॉल अपीयरेंस किसको नहीं पता मैलासिजिया फर्फर होता है, ये तो कॉमन है ना, हम लोग फंगल वाले फैक्टर जब पढ़ते हैं तो वी कम अक्रॉस दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है ना, इनमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इन सब चीजों का भी मैंने एक चार्ट बना के दिया है, फिर कहाँ पे वॉयरिज्म है, फेटिशिज्म है। इफ यू वांट ना टेक अ स्क्रीनशॉट, और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, फिर मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, मैं आपको भेज दूंगी ये सब, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई सेंड इट टू यू गाइस। तो ये क्वेश्चन कितना इजी है आप देखो, और बस इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि यू गाइस स्टडी हार्ड ना एंड गेट आउट ऑफ दिस लूप होल। एग्जाम को क्लियर करो, आराम से बैठो, इंटर्नशिप शुरू करो।
और ये वीडियो जो है ना ये बहुत पहले आनी थी. दिस वाज अबाउट दिस सपोज टू कम लाइक 2 weeks ago. 2 weeks ago ये वीडियो आने वाली थी, बट आई गॉट caught up on those internship documentation वाले थिंग. सो इसीलिए ये बहुत डिले हो गई. मेरे को ये बहुत पहले डालनी थी, बट स्टिल नो प्रॉब्लम. आप देख लो, इसमें 2x पे देख लेना इन वीडियो से, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये आपको ये कह रही हूँ ना कि ये क्वेश्चन इजी है. जो भी पूछ जाएंगे ना, जो आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम हॉल में, फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा कि नहीं क्या क्वेश्चन है, कि ये बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा. बट माइंड को काम करके क्वेश्चन को पढ़ो और फिर करो, सब हो जाएगा. ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ये सब पीवाईक्यूज है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप देखो 600 क्वेश्चन है, ठीक है. 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे जो बहुत हाई लेवल के होंगे, हमको नहीं आते. बाकी तो हमको आते होंगे ना. कुछ होते हैं हम भूल जाते हैं, उसको याद करने की कोशिश करो इसीलिए, और बस करते रहो, हो जाएगा एग्जाम क्लियर. ओके, बहुत ऐसे क्वेश्चन भी होंगे. हमको 200 नहीं चाहिए, 150 चाहिए. 150 लेके पास कर लो बस, ठीक है. बाकी उसके बाद सब सेम है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी. बस एग्जाम क्लियर करो और आराम से अपने घर पे बैठो, टाइम स्पेंड करो थोड़ा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ पेशेंट stopped alcohol consumption for 3 days and presented with irritability. यहाँ पे आपको क्या देखना है, you have to go for 3 days. 3 days उसने अल्कोहल कंजम्पशन स्टॉप किया, 3 दिन के लिए. उसके बाद उसको फीचर्स दिख रहे हैं: डिसोरिएंटेशन, पैरानॉइड डेल्यूजन्स, एजिटेशन, विजुअल हैलुसिनेशन एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम. डायग्नोसिस क्या है? ऑप्शंस: डिलीरियम ट्रेमेंस, वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी, कोसाकॉफ साइकोसिस, अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोसिस. अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? 3 डेज देखो. इस क्वेश्चन में ना मेन चीज है कि उसने अल्कोहल छोड़ी है, 3 दिन हो गए उसको अल्कोहल छोड़े हुए. अब आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अगर 6 to 8 आवर्स उसने अल्कोहल छोड़ी तो उसको क्या दिखेगा? ट्रेमर्स. 6 to 8 आवर्स ट्रेमर्स दिखेंगे. 12 to 48 आवर्स जीटीसीएस और रम फिट्स दिखेंगे. 72 आवर्स मतलब 3 डेज, 72 आवर्स 3 डेज होते हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस दिखेगा. कितना इजी हो गया. 72 आवर्स डिलीरियम ट्रेमेंस, 12 to 48 आवर्स जीटीसीएस या फिर रम फिट्स, 6 to 8 आवर्स ट्रेमर्स. अब क्वेश्चन देखो, 3 डेज बोल रहा है और उसको सब फीचर्स दिख रहे हैं. आंसर क्या हुआ? 72 आवर्स डेलिरियम ट्रेमेंस. इसका आंसर है डेलिरियम ट्रेमेंस. इतना इजी क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल शिफ्ट द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट? अभी इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होते हैं. ऑप्शंस: हाइपोक्सिया, हाइपोकार्बिया, अल्कलोसिस एंड इंक्रीज इन 2 to 3 डीपीजी. ठीक है. अब इसका आंसर क्या है मैं आपको बताती हूँ. आंसर इज अल्कलोसिस. अल्कलोसिस लेफ्ट शिफ्ट करवाता है. अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो राइट शिफ्ट कॉज करते हैं? फैक्टर्स जो राइट शिफ्ट कॉज करते हैं ना, वो सब होते हैं जो ऑक्सीजन को कम करे और बाकी सबको बढ़ाए. तो वी हैव इंक्रीज्ड पीसीओ2, डिक्रीज्ड पीओ2, इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस होगी तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बढ़ेगा. लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडोसिस होगी. पीएच कम होगा, एसिडोसिस होगी. टेम्परेचर बढ़ेगा एंड देयर विल बी एन इंक्रीज इन 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या? एकदम ऑपोजिट. वी कैन हैव डिक्रीज्ड CO2, अल्कलोसिस, वहां एसिडोसिस थी, यहाँ अल्कलोसिस है. टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर विल बी लेस. PO2 बढ़ेगा और HbF फीटल हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, हमें दिखेगा. तो अगर आप ये सब देखो ना, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ये मेरे ही नोट्स का है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट विच फैक्टर्स कॉज राइट शिफ्ट, विच फैक्टर्स कॉज लेफ्ट शिफ्ट. एक याद कर लो किसमें क्या होता है और उसके लेफ्ट शिफ्ट में एकदम ऑपोजिट होगा. तो वो यहाँ देखा जाए, हमें पूछ रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट क्या कॉज करता है. हाइपोक्सिया राइट शिफ्ट में होता है. हाइपोकार्बिया राइट शिफ्ट में होता है. इंक्रीज 2 to 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कहाँ होता है? राइट शिफ्ट में होता है. लेफ्ट में क्या होता है? अल्कलोसिस. अल्कलोसिस होता है लेफ्ट में. ओके. सो एक बार आप इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल नो, आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या चीज दिखती है. सो राइट शिफ्ट में डिक्रीज PO2 एंड बाकी सब बढ़ेगा. लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीज O2 एंड बाकी सब कम होगा. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. A patient presents with severe pain and swelling in his knee joint for 10 days. He also complains of pain and discomfort during urination.
He says that he had diarrhea 1 month ago and has been unwell since then. What is the most likely diagnosis? Options: reactive arthritis, enteropathic arthritis, rheumatoid arthritis, and psoriatic arthritis. The moment you see joint pain with urination के different के comfort के symptoms, यूरिनेशन में डिफिकल्टी हो रही है और जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आंख बंद करके गो फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज योर रेटर्स सिंड्रोम. इसमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है ना, इसमें एक ट्रायड होता है. यू हैव आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस. सो नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, इन रेटर सिंड्रोम ट्रायड क्या है? आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस. सो आंसर क्या होता है? रिएक्टिव आर्थराइटिस. आंसर इसका है रिएक्टिव आर्थराइटिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. A man was found to be lying dead on the ground. His friend saw a snake passing in the area and took a picture of it and showed it to the doctor. What is the most probable cause of death? ये क्वेश्चन ना पूछे जा चुके हैं, कौन से स्नेक्स कौन से टाइप की डेथ कॉज कर सकते हैं. ये स्नेक था व्हाइट और ब्लैक बैंड्स वाला. ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? ऐसे स्नेक जो होते हैं ना, ये रेस्पिरेटरी फेलियर से ही डेथ कॉज करते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट वो वाला ये कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर से. अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जो स्नेक्स होते हैं ना, या तो वो न्यूरोटॉक्सिक होंगे, या वैस्कुलोटॉक्सिक होंगे, या मायोटॉक्सिक होंगे. न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स जो होते हैं ना, वो क्रेट होते हैं, कॉमन क्रेट या बैंडेड. जो हमने देखा ना ब्लैक एंड बैंड वाला, वो अपना क्रेट है, वो बैंडेड क्रेट है. ठीक है, कॉमन क्रेट जो होगा उसमें एक हेक्सागोनल स्केल्स बने होंगे. इसका इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है. जो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक में, या तो क्रेट होंगे या कोबरा होगा. क्रेट में कॉमन और बैंडेड आते हैं. कॉमन में स्केल्स होते हैं, हेक्सागन स्केल्स होते हैं. बैंडेड में ऑल्टरनेट ब्लैक एंड येलो बैंड होते हैं. कोबरा किंग कोबरा होता है, कॉमन कोबरा होता है. जो किंग कोबरा होता है ना, उसमें स्पेक्टिकल मार्क नहीं दिखेगा. कॉमन कोबरा में दिखेगा स्पेक्टिकल मार्क. और इनका जो कॉज ऑफ डेथ होता है ना, ये होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी शॉक, रेस्पिरेटरी फेलियर बोल दो. नेक्स्ट वैस्कुलोटॉक्सिक होता है, उसमें वाइपर्स आते हैं, पिट वाइपर्स एंड पिटलेस वाइपर्स. वी शेप का हेड होता है इनका. पिटलेस में कौन से आते हैं? रसल वाइपर्स और सॉ स्केल वाइपर्स. कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग. एकदम शॉक कर देते हैं, हेमोरेजिक शॉक. प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, हेमोरेजिक शॉक इज द कॉज ऑफ डेथ इन द केस ऑफ वैस्कुलोटॉक्सिक स्नेक्स. मायोटॉक्सिक कौन से होते हैं? सी स्नेक्स, पैडल लाइक टेल होती है उनकी. कॉज ऑफ डेथ रीनल फेलियर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज this is a neurotoxic snake and the cause of death is respiratory failure. ये neurotoxic है, neurotoxic snake. Okay, so next question. A dead body was found with a wound on the neck with clean cut edges, crushed tissue along disruption of the vertebral bones. कौन सा टाइप का वूंड है? बहुत कॉमन है, क्लीन कट एजेस है, क्रश दिख रहा है, तो ये एक चॉप वूंड है. ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा है दैट यू गाइस विल बी एबल टू नो कि कौन से वूंड में कैसा दिखता है और कैसे उसकी वो होती है. एक बार आप देख लो कौन सा वूंड कैसा होता है. दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट चॉप वूंड. नेक्स्ट क्वेश्चन फिंगरप्रिंट के ऊपर है. ओके, सो फिंगरप्रिंट में अगर आप इसको देखोगे ना, तो व्हाट कैन यू सी ओवर हियर? यू कैन सी एन आर्च. एक डेल्टा बन रहा है बीच में, एक डेल्टा बन रहा है. ठीक है, अब जो हमारी आर्च वूंड्स होती है ना, ये आर्च वूंड है. आर्च वूंड दो टाइप की होती है, या तो वो प्लेन होगी या वो टेंटेड होगी. ठीक है, और प्लेन में ना कोर होगा ना डेल्टा होगा, लेकिन आर्च वाली में एक डेल्टा दिखने को मिलता है. तो ये एक टेंटेड आर्च वूंड, आर्च फिंगरप्रिंट है, आपको एक डेल्टा दिखने को मिल रहा है. सो ये एक टेंटेड आर्च है. ठीक है, अब वोल में आते हैं. इसमें क्या होता है ना, ये गोल 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 सा होता है. सेंटर में एक कोर हो सकता है विथ टू डेल्टास, कोर विथ टू डेल्टास वोल में. कॉम्पोजिट में क्या होता है? मिक्सड होता है. ठीक है, लूप में क्या होता है? लूप को आप याद करो LCD. LCD मतलब लूप में एक कोर एक डेल्टा. लूप को याद करो LCD, लूप में एक कोर एक डेल्टा, वोल में कोर विद टू डेल्टास, और कॉम्पोजिट इज मिक्स. ओके, आर्च में क्या होता है ना, इट कैन बी प्लेन और इट कैन बी टेंटेड. टेंटेड होगी तो बीच में एक डेल्टा देखने को मिल सकता है, प्लेन होगी तो ना कोर होगा ना डेल्टा. सो अगर आप देखो तो यहाँ बीच में एक डेल्टा बन रहा है. सो ये किसके एग्जाम्पल है? आर्च फिंगरप्रिंट है जो टेंटेड है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गन शॉट का है. A gunshot case was brought for autopsy, shown an entry wound with inverted margins, okay, surrounded by tattooing, but blackening and singeing of hairs is not seen. What is the most possible range of firing? Contact shot, near shot, close shot, distance shot.
अब इसको आंसर करने से पहले लेट अस गो टू द एक्सप्लेनेशन। ओके, जो कॉन्टैक्ट होता है ना, कॉन्टैक्ट एकदम पास से होता है। इसमें जो ब्लैकनिंग, टैटूइंग और सिंजिंग होगी ना, वो हमें दिखेगी उस चैनल के अंदर, ठीक है, वो अलग से बाहर नहीं दिखेगी, वो उस पाथ के अंदर दिखेगी। तो जो इफेक्ट्स होंगे ब्लैकनिंग, टैटूइंग, ये हमको इनसाइड द रूट दिखेंगे, ठीक है, इनसाइड द रूट। एक और बात, कॉन्टैक्ट अगर सर के ऊपर होगा ना तो वो स्टार शेप होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कल है। लेकिन अगर एब्डोमेन में होगा तो वो ओवल शेप होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अगर सर के ऊपर होगा तो स्टार होगा, एब्डोमेन में होगा तो ओवल होगा। यहाँ पे सारे इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो रूट के अंदर दिखते हैं। ब्लैकनिंग, टैटूइंग और सिंजिंग हमें दिखेगा रूट के अंदर, ठीक है। सिंजिंग प्लस ब्लैकनिंग प्लस टैटूइंग तीनों दिख रहे हैं, तो वो एक क्लोज है, वो क्लोज एंट्री है। एक राउंड एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो एक राउंड एंट्री होगी, और इसको हम बोलते हैं नियर शॉट, ठीक है। सिंजिंग भी है, ब्लैकनिंग भी है और टैटूइंग भी है। कॉन्टैक्ट में क्या हुआ था, सब इफेक्ट्स रूट के अंदर थे, क्लोज में, या फिर उसको नियर शॉट भी कह सकते हैं। उधर सिंजिंग भी दिखेगी, ब्लैकनिंग भी दिखेगी और टैटूइंग भी दिखेगी। इंटरमीडिएट में क्या होगा, इंटरमीडिएट में इसको हम लोग, ये राउंड होता है बेसिकली, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे टैटूइंग होती है लेकिन ब्लैकनिंग और सिंजिंग प्रेजेंट नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, नियर शॉट, नियर शॉट। डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन नियर कॉन्टैक्ट एंड नियर शॉट। नियर कॉन्टैक्ट इज सीन इन द केस ऑफ अ क्लोज वूंड, क्लोज शॉट के उसमें नियर दिखता है, और यहाँ पे सिंजिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग तीनों दिखती है। लेकिन नियर शॉट में यू कैन फाइंड only tattooing, blackening may or may not be present. So do not get confused between near contact and near shot. Now look at this question, what were they saying? They were saying कि tattooing दिख रही है पर blackening और singeing नहीं दिख रही। So what is it? It is a near shot. Near contact नहीं, near contact नहीं, near shot. So answer is near shot. Okay, if you want you can take a screenshot or you can text me. Okay, I'll send you this explanation वाला PDF also if you want. Okay. So next question, which of the following bones is the most accurate for sex determination? ये तो कोई भी आंसर कर सकता है। It is pelvis. Pelvis is the most accurate bone for sex determination. One more thing which I wanted you guys to know is pelvis में क्या होता है ना, फीमेल में सब कुछ बड़ा होता है pelvis में। All the parameters are bigger in the pelvis of a female, but in the case of a male we have OSA. OSA are bigger in males than in females. O stands for obturator foramen. S stands for sacroiliac articulation. A stands for acetabulum. Okay, so in the case of males, pelvis में OSA are greater than in females. So obturator foramen on the other hand, in the case of a female it is round, but in the case of a male it is triangle. Okay, sorry, I said it opposite. In the case of a male it is round, in the case of female it is triangle. So obturator foramen, sacroiliac articulation and acetabulum मेल्स में बड़े होते हैं देन फीमेल्स, एंड जो ऑब्टरेटर फोरामन होता है वो मेल्स में राउंड होता है और फीमेल्स में ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू MTP पता ही होगा, इट इज़ 24 वीक्स। ओके, ये भी मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आप MTP एक्ट के जो चीज़ें हैं ना वो एक बार देख लो। MTP एक्ट में अपर लिमिट क्या होती है, 24 हफ्ते, 24 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a public witness of the incident is asked to attend the court and record his evidence. Which type of evidence is provided by the court? अभी अगर आप ये सब देखते हो ना, so I'll say you this. कोर्ट के बाहर दो टाइप के एविडेंस होते हैं, वी हैव डायरेक्ट एंड वी हैव इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन आता है, कॉमन विटनेस आता है। जो आई विटनेस होता है वो कॉमन होता है, जिसने क्राइम को होते हुए देखा होता है। और एक्सपर्ट होता है वो अपना डॉक्टर होता है जो एक डिटेल्ड हिस्ट्री और मेडिकल एग्जामिनेशन करके लेके आता है। सो डायरेक्ट में वी हैव कॉमन एंड एक्सपर्ट। एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, कॉमन इज आई विटनेस। इनडायरेक्ट में क्या होता है, वी हैव सर्कमस्टेंशियल विच इज़ सीन, मतलब वो एक्चुअल क्राइम होने से पहले ऐसा कुछ उन्होंने देखा है कि वो क्राइम वो कर सकता है। मारपीट हुई, कुछ भी हुआ, उन्होंने देखा कि ये क्राइम ये हो सकता है। हियर से क्या होता है, हियर से मतलब उन्होंने सुना, दे हैव हर्ड इट, एंड ये हियर से होता है ना, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, डाइंग डिक्लेरेशन। अगर डाइंग डिक्लेरेशन होती है तो वो एडमिसिबल है, लेकिन अगर दूसरा कोई हियर से क्राइम है जो हर्ड होगा, दैट इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। सो ये आपके एविडेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, द पब्लिक विटनेस ऑफ द इंसिडेंट इज आस्क्ड, पब्लिक विटनेस, इट इज़ अ विटनेस, ओके, टू अटेंड द कोर्ट एंड रिकॉर्ड दिस एविडेंस। ये किस तरह का एविडेंस है, इट इज़ एन ओरल एविडेंस।
ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन है हियर से, नहीं हियर से तो एडमिसेबल ही नहीं है ना, तो वो कोर्ट में क्यों लाएंगे। एंड सबको है ना तो पता नहीं कहाँ से आएगा, सर्कमस्टेंशियल भी नहीं है ये, ठीक है। सो उसने बुलाया है एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, सो ये है अपना ओरल एविडेंस। आप इसको भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट या फिर PDF मांग लेना, मैं भेज दूँगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 50-year-old factory worker was brought to the emergency room with complaints of headache, vomiting, blurred vision after he consumed a local spirit. एक लोकल स्पिरिट को कंज्यूम करने के बाद he felt all these symptoms occurring after consuming a local spirit. Okay, which of the following can be used for the treatment of this condition? Now this question is very important, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? लोकल स्पिरिट कंज्यूम किया है उसने, सो आंसर होगा फोमेपिजोल, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। ओके, उसने एक लोकल स्पिरिट कंज्यूम किया है, मतलब देसी दारू, ठीक है। देसी दारू में मिथेनॉल भी होता है, अलॉन्ग विद इथेनॉल वी हैव मिथेनॉल ऑल्सो। एंड what can occur in the patient is methanol toxicity can occur in the patient, and to reverse that we can use fomepizole or we can give more ethanol to the patient, but fomepizole drug is more preferred than giving ethanol to the patient again. Okay, so in the case of methanol toxicity, कोई भी देसी दारू लोकल स्पिरिट कंज्यूम हुआ है, so you have to give fomepizole to the patient and it is more preferred than giving ethanol. Now the most important question in today's PDF is this itself. यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है डी एडिक्शन, विड्रॉल, रिलैप्स एंड टॉक्सिसिटी के ऊपर। ओके, अगर ओपियोइड है, ठीक है, कोई ओपियोइड दे रहे हैं, उसमें डी एडिक्शन या क्रेविंग हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे? वी कैन गिव मीथाडोन और वी कैन गिव बुप्रेनॉर्फिन, ठीक है। विड्रॉल के लिए मीथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन, रिलैप्स के लिए नालट्रेक्सोन, टॉक्सिसिटी के लिए नालोक्सोन। दिस टेबल इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वीडियो ना। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आ ही सकता है। डी एडिक्शन के ऊपर, विड्रॉल के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, टॉक्सिसिटी के ऊपर भी आते हैं। ओपियोइड, अल्कोहल, निकोटीन, ये आपका साइकेट्री पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है और फॉरेंसिक पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है और फार्म से तो है ही इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ओपियोइड में डी एडिक्शन के लिए मीथाडोन, बुप्रेमॉर्फिन, विड्रॉल के लिए मीथाडोन, बुप्रेमॉर्फिन, रिलैप्स के लिए नालट्रेक्सोन, टॉक्सिसिटी के लिए नालोक्सोन। अल्कोहल के डी एडिक्शन के लिए नालट्रेक्सोन एंड इकैम्प्रोसेट, विड्रॉल के लिए क्लोरडाइजेपोक्साइड, लोराजिपम, डायजिपम एंड विटामिन B1, रिलैप्स के लिए नालट्रेक्सोन, डाइसल्फिराम, टॉक्सिसिटी के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो या विटामिन B1 दो। ओके, एंड निकोटीन के डी एडिक्शन एंड क्रेविंग के लिए निकोटीन, वेरानिक्लिन एंड बुप्रोपियोन। ओके, और विड्रॉल, रिलैप्स, टॉक्सिसिटी के लिए हमारे कुछ नहीं है निकोटीन के केस में। ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं PDF तो शेयर कर दूँगी, आप बोलोगे अगर, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल के केसेस में कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, डी एडिक्शन में, क्रेविंग में, रिलैप्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्पेशली ध्यान दो। इस PDF में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, चांसेस हैं डेफिनेटली कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोकल स्पिरिट कंज्यूम किया है ना, मिथेनॉल टॉक्सिसिटी हो रखी है, आंसर क्या होगा? फोमेपिजोल मोर देन इथेनॉल, सो आंसर हियर इज फोमेपिजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man bought by his wife as he calls other women and achieves sexual gratification by talking obscenity and sharing obscene pictures. What does the patient most likely have? इसको क्या होगा? स्कैटोलॉजिया इसको बोलते हैं, कॉल्स के बारे में स्कैटोलॉजिका बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्कैटोलॉजिका ऑब्सीन कॉल्स, ये टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बोलो ना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये टेबल में जो दे रखा है ना इनके बारे में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसके बाहर आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन कम। सो ऑब्सीन कॉल अगर कर रहा है तो व्हाट इज़ द आंसर? स्कैटोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अ पेशेंट वाज ब्रॉट टू द कैजुअलिटी विद ग्रीनिश कलर स्किन एंड अ रॉटन एग ओडोर, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉसिबल पॉइजनिंग द पर्सन कुड हैव? ग्रीनिश कलर स्किन एंड रॉटन एग से ही आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रीनिश कलर स्किन और रॉटन एग ओडर बनाता है। ब्लूइश ग्रीनिश होगा तो इट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्लूइश वायलेट होगा तो वह एस्पिक्सिया के कारण है। ब्राइट रेड हाइड्रोजन साइनाइड, चेरी रेड कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लू एनिलीन, डीप ब्लू पोटेशियम साइनाइड,
डार्क ब्राउन फॉस्फोरस, चॉकलेट ब्राउन मेथ हेमोग्लोबिन। ओके, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ब्लूइश ग्रीन H2S, ब्लूइश वायलेट एस्फिक्सिया, ब्राइट रेड HCN, चेरी रेड कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लू एनाइलिन, डीप ब्लू पोटेशियम साइनाइड, डार्क ब्लू फॉस्फोरस, चॉकलेट ब्राउन मेथ हेमोग्लोबिन। सो गाइस, हमने अप्रॉक्सीमेटली ना 20-25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी, और ये कुछ बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली नीट पीजी के थे, बट दे वर आस्क्ड इन FMG एग्जाम एज वेल। सो आई हैव एक्चुअली टू 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन सरफेस टेंशन का भी है, यहाँ पे कुछ ड्रग्स के भी हैं। So guys, please do text me now. I'll send you the PDF as well. You can practice those questions as well. And one more thing I wanted you to go through is eyes के उसमें, कि अगर हमारा ऑप्टिक काइस्मा इफेक्ट हो रहा है तो कौन सी डिस्टर्बेंस आ रही है, राइट हाफ आइज जा रहे हैं तो कौन से डिस्टर्बेंस हो रही है, लेफ्ट हाफ जा रहे हैं तो कौन से डिस्टर्बेंस हो रही है। वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी का, और ऑप्थेल्मोलॉजी की इमेजेस भी प्लीज़ एक बार देख लेना आप, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो पार्ट के ऊपर ना मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला, वरना मैं आपका एक PYQ डाल देती यहाँ पे। सो एक क्वेश्चन था जिसमें अगर लेफ़्ट हाफ अफेक्ट हुए हैं आई के, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, उसमें कौन सी चीज़ डैमेज हो रही है, तो उस पार्ट को भी एक बार देख लेना कि वो आ सकता है ऑप्थाम में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो these are all the questions which I actually found important for you guys to remember। बहुत बड़े बड़े इनके explanations नहीं हैं, छोटे छोटे explanations हैं, पर ये important है, ठीक है। तो प्लीज़ have a look on these questions as well as and also have a look on those images वाला PDF, सर्जरी की images, पैथो की images। आपको PDF चाहिए, I can send it to you guys। Please to text me on my Instagram channel or on my Telegram channel as well। So I hope you guys do well in your exam, and if you have any doubt please do let me know and try to answer these questions। acute attack of gout में कौन सा ड्रग, सेकेंडरी डायरिया के लिए कौन सा ड्रग, ट्रैवलर के लिए कौन सा ड्रग, और ये सब क्वेश्चंस भी ना यू कैन टेक्स्ट मी, आई सेंड यू द PDF ना। इनको आंसर करने की कोशिश करो, टेक इट एज एग्जाम के 10 क्वेश्चन ही ले लो इनको और आंसर करने की कोशिश करो। आई होप यू गाइज डू वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज।